Bismillahirrahmanirrahim. Worthy Chief Guest, Professor Atar Saab from Bahria University of Health Sciences, Karachi. Respected speakers, Professor Dr. Saeed Khan from Dow University, Karachi. Sikandar Shirwani Saab from Federal Urdu University, Karachi. Dr. Sadaf from Malir University, Karachi. Dr. Nida Beg from Dow University, Karachi. Dr. Shaista from University of Sindh, Jamshoro. And our worthy respected guest, I think they have not come still. Professor Zulfikar Ligari Saab, he is the chairman of Medical Lab Technology and Physiology Department from University of Sindh, Jamshoro. And from the guest from the Liaquat National Hospital set up from Hyderabad, LUMS. Respected participants, students, Assalamu alaikum. I am thankful to all of you to spare your time for this 11th National Seminar of Medical Lab Technologists Association of Pakistan. And this is the second event for the poster competition, national poster competition for the students of Medical Lab Technology to promote and encourage them for their research work and to promote their paperwork writing and the other abilities which they have. So from the start, I will a little bit introduce about you the introduction of Medical Lab Technologists Association of Pakistan, which was established in 2009, and now it is spread and prevailed all over in Pakistan, 6 provinces of Pakistan. We have setups there, and the main mission and goal of our organization is to raise the issues of allied health professionals, to highlight their problems, their curriculum issues, their rights, their promotional structure, their service rules, and especially the job creation in all over the Pakistan. So these are some basic mission statements of MLTAP. Moreover, we are also involved in different training activities, different academic activities, hands-on training, workshops, and we will involve all these professionals, medical lab technologists, allied health sciences, all the community. We invite them, we involve them in all these activities to enhance their knowledge, to enhance their abilities, to enhance their educational and diagnostic abilities. So I would like to take some advantages, as we have different authoritative and influential people here. They are also dealing with the students of allied health sciences at their institutional level, and moreover at the provincial level at Government of Sindh. Especially Dr. Saeed Khan is there and DG Saab is there. सर मैं स्टार्ट करना चाह रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से, लेकिन अभी तक वो लोग पहुँचे नहीं हैं, कुछ इश्यूज़ थे मैं एड्रेस करना चाह रहा था, तो जैसे भी आते हैं इंशाल्लाह मैं अपनी बात जारी रखूँगा। मैं सिर्फ स्टार्ट ये करना चाह रहा हूँ कि जितनी भी हमारी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं या जितने भी हमारी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो अलाइड हेल्थ साइंसेज करवा रही हैं, रिप्रेजेंटेशंस के हवाले से एक गैप था, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करने के हवाले से कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मौजूद नहीं थी। तो पाकिस्तान में हमने सबसे पहला एक प्लेटफॉर्म दिया, एक यूनानिमस प्लेटफॉर्म दिया तमाम अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को कि वो उसके अम्ब्रेला में इकट्ठे हों, उनके हम इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे, ना सिर्फ हाईलाइट करेंगे बल्कि अपनी पूरी स्ट्रगल करेंगे उसको सॉल्व करवाने के लिए, जिनमें हम पंजाब से या इस्लामाबाद से मरकज़ की बात करते हैं या KPK में ख़ास तौर पर, सिंध में थोड़े से इश्यूज़ हैं, मैं वो भी एड्रेस करूँगा जो यहाँ पे अभी तक नहीं हो सके। सबसे मेन इशू था सर सर्विस स्ट्रक्चर का। जो लोग हमारे मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट अपॉइंट होते हैं 17 स्केल में, उनका कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था 18 में, 19 में, 20 स्केल में जाने का। Even they are qualified and have the degrees of MPhil and PhD and postdoc. एक्सपीरियंस होने के बाद 10-10, 20-20 सालों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो 17 पे ही रिटायर हो जाते थे। हमने इसके लिए स्ट्रगल की और इसको नेशनल लेवल पे हाईलाइट किया, प्रोविंशियल लेवल्स पे हमने DG हेल्थ साहबान और सेक्रेटरी साहबान के साथ मिलकर हमने इसको टेक ओवर किया। इंस्टीट्यूशंस के हेड की हमने सपोर्ट ली, इसमें वहाँ से लेटर्स हमने इशू करवाए। पंजाब में, KPK में, फेडरल टेरिटरी में
हमारा ये मंजूर हो चुका है। तमाम मेडिकल टेक्नोलॉजी जो 17 स्केल में अपॉइंट होंगे वो इंशाल्लाह 20 स्केल तक प्रमोट होंगे। ये हमारा एक बहुत बड़ा इस पर कंट्रीब्यूशन था। दूसरा जो इसमें एक हमारा इम्पॉर्टेंट टास्क था वो था सर्विस रूल्स का ना होना। सर्विस रूल का मतलब ये कि अगर आपने 18वें स्केल में जाना है तो कैसे जाना है, ठीक है। उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमने काम किया। 2011 में हमने सर्विस स्ट्रक्चर अप्रूव किया एंड आफ्टर 1 ईयर 2012 में हमारा सर्विस रूल्स भी अप्रूव हो गया और वो भी प्रिवेल्ड है पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह। टेक्नोलॉजिस्ट के तमाम सर्विस रूल सिस्टम अवेलेबल है विद जॉब डिस्क्रिप्शंस कि उनका किस तरीके से चैनल्स आगे जाएगा। 2016 में सर हमने यार्ड स्टिक अप्रूव करवाई। यार्ड स्टिक का मतलब ये है कि जो भी हॉस्पिटल बनेगा तालुका लेवल पे, THQ लेवल पे, DHQ लेवल पे, टीचिंग हॉस्पिटल, उनमें कंपलसरी सीट्स होंगी मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ की, जैसे डॉक्टर्स की हैं, जैसे नर्सेज की हैं, जैसे पैरामेडिक्स की हैं। कंपलसरी सीट्स होंगी मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के लिए। ये अप्रूव हो चुका है 2016 में। इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के इशूज़ हैं थोड़े से, लेकिन ये डॉक्यूमेंट हो चुका है। इंशाल्लाह हम इसको इम्प्रूव भी करवाएंगे। कंपलसरी इंडक्शन होगी आप लोगों की इंशाल्लाह हॉस्पिटल्स में। मोर ओवर द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ थी हम इनको लेके आए हैं अपने रिटन फॉर्म में। हमने अपना न्यूज़ लेटर पब्लिश किया, उसमें हम ये सारी एक्टिविटीज़, हमारे जो स्टूडेंट्स का इनपुट होता है, हमारे जो प्रोफेशनल जो फील्ड में काम कर रहे हैं, टीचिंग साइड पे काम कर रहे हैं, क्लिनिकल साइड पे काम कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेटअप में काम कर रहे हैं, उनका जितना भी इनपुट होता है, जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हम सारा अपना न्यूज़ लेटर में लेके आते हैं, जिसको हम साल में 1 या 2 दफ़ा पब्लिश करते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा है। तो अब वो सारी चीज़ें रिटन में हैं और वो हमारा न्यूज़ लेटर पब्लिश हो रहा है। हर साल हम उसको पब्लिश कर रहे हैं, साल में 2 दफ़ा भी बाज़ होगा तो हमें पब्लिश करना पड़ता है। तो वो भी एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमने आप लोगों को आज ये जो नया हमारा न्यूज़ लेटर था हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया। आप लोग इसको देखिएगा और आप इसमें नेक्स्ट टाइम खुद भी इंक्लूड हो सकते हैं। आपकी एक्टिविटीज़ भी, आपके पेपर्स भी, आपकी कोई नई इनोवेशन भी इसमें हम पब्लिश कर सकते हैं। ये आपका पेपर है, आपका न्यूज़ लेटर है, हम इंशाल्लाह आपको इस पर मौका देंगे, जगह देंगे। इसके अलावा ये है कि हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया अलाइड हेल्थ साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए। वो प्रोग्राम था हमारा स्कॉलरशिप्स का, उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिज़र्विंग है, जो अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन फ़ी को असिस्ट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया। उसमें हमने कोशिश की, डोनर्स अरेंज किए हमने कि हमारे वो दोस्त जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लेके आ तो गए हैं, मेरिट पे आए हैं आल्दो, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। फ़ीस स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन भी बिज़नेस बन गया ना पाकिस्तान में, रियासत की जिम्मेदारी है, ये भी बिज़नेस है। हमने उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप स्टार्ट किया, उनके लिए डोनर्स अरेंज किए, डोनर्स के हाथ से ही हमने उनको स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किए। उसमें सिंध के लोग भी शामिल हैं। लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से हमने लिए थे नॉमिनेशंस, उनको हमने स्कॉलरशिप दिया। जो जो लोग अप्लाई करते हैं डेफिनेटली एडवर्टाइज हो जाती हैं वेबसाइट पे, हमारी सोशल मीडिया के नेटवर्क्स पे एडवर्टाइज हो जाती हैं। इसकी बाकायदा कमेटी होती है जो स्क्रूटनी करती है और डिजर्विंग स्टूडेंट्स जितने भी होती हैं, हम कोशिश करते हैं जितनी एप्लीकेशंस हैं सबके सबको इंटरटेन करें और सबके सब ML टैब के इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाएँ और अपनी एजुकेशन जारी रख सकें। पैसों की वजह से तालीम नहीं छोड़नी चाहिए। हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे। हम आपकी एजुकेशन कंप्लीट करवाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम अटैच हैं इंटरनेशनल बॉडी के साथ, IFBLS के साथ। पाकिस्तान में ML टैब उसकी चैप्टर हेड है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बायोमेडिकल लैब साइंसेज, कनाडा बेस्ड इंटरनेशनल फेडरेशन है। पाकिस्तान में ML टैब उसकी चैप्टर हेड है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ML टैब इज़ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। कौंसल हमारी नहीं थी, मैं कौंसल पे भी बात करूंगा कि उसमें क्या पेशरफ्त हो चुकी है। कौंसल से पहले फॉरेन जॉब्स के लिए हमारे जितने भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही नहीं होता था। पाकिस्तान की ऐसी कोई बॉडी नहीं थी कि जो उनको सर्टिफाई करे ताकि वो फॉरेन जाके अपनी जॉब कर सकें। उनको ML टैब ने फैसिलिटेट किया। पिछले 10 सालों से ML टैब की इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन जारी हो रही हैं इंटरनेशनल एक्रीडेशन के हवाले से। जो हमारे वो क्वालिफाइड मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएटेड हैं, हमने उनको लाइसेंस दिए, रजिस्ट्रेशंस दी और ML टैब की रजिस्ट्रेशन की बेस पे माशाल्लाह वो पूरी दुनिया में इस टाइम जॉब कर रहे हैं। हमने 1000 से ज़्यादा लोग बाहर भेजे ML टैब की रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में ML टैब ने एक रोल प्ले किया है। और बल्कि हमने अपने प्रोफेशनल्स को प्रमोट किया है कि वो बाहर जाके अच्छी सैलरीज पे काम करें, ना सिर्फ पाकिस्तान का ज़रिए मुबादला बढ़ाएं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करें। ये एक ML टैब का एक इंस्टीट्यूट था और पिछले वीक तक हमारी 1000 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 1000 बंदा हम बाहर भेज चुके हैं ML टैब के प्लेटफॉर्म से।
पिछले साल हमने कराची में एक्सपो की 2022 में, उसमें हमने पहला नेशनल पोस्टर कंपटीशन रखा स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए। इस साल हमने दूसरा उनका कंपटीशन रखा। इसमें भी हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन रखी ताकि हौसला अफजाई हो, इनकरेजमेंट हो उन स्टूडेंट्स की जो मेहनत कर रहे हैं, जो पोस्टर बना रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, पेपर पब्लिकेशन में इन्वॉल्व हो, और उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, उनकी इनकरेजमेंट की जाए, उनको आगे तक लेके जाया जाए। तो हमने ये पिछले साल से स्टार्ट किया था। ये हमारा दूसरा सालाना स्टूडेंट्स पोस्टर कंपटीशन है। इसमें भी हमने ये रखा हुआ है, हमारे पास जजेस की टीम मौजूद है, उनके नाम भी अनाउंस होंगे यहाँ पे। वो पोस्टर हमारे डिस्प्ले हो चुके हैं पीछे। तो हमारी जो जजेस कमेटी है वो जाके उसको इवेलुएट करेगी और उनके पास परफॉर्मा है पूरा, उसको ये फुलफिल करेगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इस टाइम MLTAP सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को। हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू था जो मैं समझता हूँ कि प्राइम बेस्ड था, वो था हमारी कौंसल का ना होना, हमारी रिप्रेजेंटेटिव जो प्रोफेशनल कौंसल है उसका ना होना। जैसे PMDC है, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल है, होम्यो कौंसल है, तिब कौंसल है, इंजीनियरिंग कौंसल है, इसी तरह अलाइड हेल्थ कौंसल के ऊपर 98 से काम हो रहा था, लेकिन मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की चूँकि ये प्रायोरिटीज़ नहीं थी, 98 से हम इसके पीछे लगे हुए हैं। 2022 में जाके हमारी कौंसल अप्रूव हुई और उसको बाकायदा कानून की शक्ल दी गई। अब हमें इस 2 महीने पहले उसका इस्लामाबाद में हेड ऑफिस भी मिल गया। पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कौंसल ना सिर्फ अब कानूनी हैसियत अख्तियार कर चुकी है, बल्कि ऑफिशियली उसने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया इस्लामाबाद हेड ऑफिस से। और इस्लामाबाद के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस टाइम अलाइड हेल्थ साइंसेज की एजुकेशन करवा रहे हैं, उनकी एक्रीडेशन भी स्टार्ट हो गई है। विद इन 6 मंथ इंशाल्लाह कौंसल के लेवल पे तमाम मेडिकल टेक्नोलॉजीज की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी इदारे अलाइड हेल्थ साइंसेज करवा रहे हैं उन सब इदारों की एक्रीडेशन होगी, यूनिफॉर्म सिलेबस होगा। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा मुतालबा था, हमारी जो डिमांड थी, वो ये थी कि जितने भी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं उन सबको प्राइवेट प्रैक्टिस करने की परमिशन दी जाए। कोई हेल्थ केयर कमीशन उस पर थ्रेट नहीं कर सकेगा। ये हमारा बहुत बड़ा मुतालबा था उस पर। सितंबर में कौंसल ने ये लेटर जारी कर दिया तमाम प्रोविंशियल हेल्थ केयर कमीशंस को, सिंध, पंजाब, KP और HK और बलूचिस्तान को, कि कोई हेल्थ केयर कमीशन का बंदा किसी प्रोफेशनल अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को थ्रेट नहीं करेगा उनकी लैब्स में जाके, उनकी क्लिनिक्स में जाके, उनकी प्रैक्टिसेस पे जाके। जब तक ये कौंसल का दायरा कार है, जब तक कौंसल डिफाइन नहीं करेगी आप किसी को थ्रेट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी मुनाफली है। या तो आप गवर्नमेंट लेवल पे सीट्स क्रिएट करें, हमारे डिग्री होल्डर्स को जॉब्स दें, उनको एक बाइज्जत रोजगार दें, या फिर हमें प्राइवेट प्रैक्टिस करने की परमिशन दी जाए। इस पे डायलॉग हो सकता है, कैटेगरीज हो सकती हैं, क्वालिफिकेशन वाइज हमने कैटेगरीज बना दी हैं। जो PhD है उनकी कैटेगरी और है, जो MPhil हैं, जो BS हैं, सबकी कैटेगराइजेशन की हुई है हमने। उसके हिसाब से प्रैक्टिसेस को हम लिमिटेशन में ले आ सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह कौंसल लेवल पे ये काम कर रहे हैं। हमारा ये बहुत बड़ा मुतालबा है। उसके ऊपर प्रोविजनली काम भी हो चुका है। पिछले महीने सितंबर में उसका लेटर भी इशूज़ हो चुका है तमाम प्रोविंशियल हेल्थ केयर कमीशंस को। ये हमारा कौंसल लेवल पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। हम सबकी, तमाम प्रोफेशनल्स की, तमाम स्टूडेंट्स की, तमाम इदारों की जो अलाइड हेल्थ साइंसेज करवा रहे हैं, डिग्री प्रोग्राम करवा रहे हैं, इंशाल्लाह सबकी एक्रीडेशन हो जाएगी। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हम ये एक और भी अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। हमारा इस टाइम एफिलेशन है पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन से। उनके प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब चैप्टर को मैं हेड कर रहा हूँ। हम पेप्सा के प्लेटफॉर्म पे बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी की वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं पूरे पाकिस्तान में। ये एक नया ट्रेंड है पाकिस्तान में, कन्वेंशनल डायग्नोसिस से हट के बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी का। बायो सेफ्टी का पिछले कई सालों से उसकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, बायो सिक्योरिटी की अब स्टार्ट हुई है, उसके ऊपर भी बड़ा काम हो रहा है और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ हाईली पैथोजन ऑर्गेनिज्म पे काम हो रहा है। उनके लिए बायो सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, बायो सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इस पर भी हम काम कर रहे हैं और इस पर हम मल्टीपल वर्कशॉप्स अरेंज कर रहे हैं। कराची में उसकी कई वर्कशॉप्स हो चुकी हैं, हैदराबाद लम्स में इसकी वर्कशॉप हो चुकी है, खैरपुर में भी शायद ये हो चुकी है, इंटीरियर सिंध को कवर करने के लिए। तो हम इसको मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी हम दिसंबर में मुल्तान में प्लान कर रहे हैं, नवंबर के एंड में यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में है, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फेब में इस्लामाबाद में मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं इसकी। उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, आप सारे लोग क्वालिफाइड हैं उसके लिए।
आप सारे के सारे लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप उसकी मेंबरशिप लें, ताकि आपको उनकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो साथ के साथ रिसीव होती रहें और आप फिर उसको ज्वाइन कर सकें, और उनकी जितने भी ना सिर्फ नेशनल एक्टिविटीज़ हैं बल्कि इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हैं, आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो नया एरा है जिनमें बायोसेफ्टी है, बायोसिक्योरिटी है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, आप उसमें भी भरपूर हिस्सा ले सकें और उन जहतों की तरफ, उन सिमतों की तरफ जा सकें जो कि बाकी लोगों के लिए नहीं है। ये कन्वेंशनल चीज़ें पीछे रह गई हैं। आप लोग लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट हैं, एमफिल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, और इवन जो आपका बीएस का सिलेबस है ये भी एमफिल लेवल का है। इसके बाद आप हायर लेवल तक आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से, आईपीसी के हवाले से, लैब मैनेजर के हवाले से, बायोसेफ्टी बायोसिक्योरिटी के हवाले से, और जितनी भी आप चीज़ें यहाँ पे लर्न करते हैं या बाकी वर्कशॉप्स पे या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स पे, उसको फिर डिसेमिनेट करना होता है अपने इदारों में जाके, अपने कुलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, फेलोज़ के साथ आपने वो शेयर करनी होती हैं, और जो चीज़ें सीख के उसको फिर इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी डेली लाइफ में, ताकि फिर आपको फ़ायदा होगा इन सारी प्रैक्टिसेस का, हैंड्स ऑन का और वर्कशॉप्स का। ये डॉक्टर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आपको इस पर करें कि हमने लास्ट टाइम भी डॉक्टर साहब से फेवर ली थी कि 5000 इसकी लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो ML टैप के पिछले प्रोग्राम में भी हमने सर से फेवर ली थी। सर इंशाल्लाह अपनी टॉक के बाद दोबारा भी अनाउंस करेंगे, हम इनसे फिर फेवर लेते हैं कि आपके लिए जो यहाँ पे मौजूद है ML टैप के इस CME बेस्ड सेमिनार पे, उनके लिए जो लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो 5000 की बजाय 3000 होगी इंशाल्लाह, डॉक्टर साहब की परमिशन के साथ। हमारे कुछ इशूज़ थे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो के, उन्होंने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की। मैडम आप प्लीज़ कन्वे कीजिएगा, मेरे ख्याल लिगारी साहब अभी तक नहीं पहुँचे हैं। आप फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं माशाल्लाह, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को डील कर रही हैं, हेड कर रही हैं आप वहाँ पे। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो के जो हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे भी मौजूद हैं, जो डिग्री होल्डर स्टूडेंट हैं हमारे पास, कराची में आप जॉब कर रहे हैं या मुख्तलिफ इदारों के साथ अटैच है या MPhil कर रहे हैं, मैंडेटरी उन्होंने इंटर्नशिप रखी हुई है। उनके पास अपना कोई टीचिंग हॉस्पिटल ही नहीं है, इंटर्नशिप मैंडेटरी है 6 सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक। वो कहाँ पे करेंगे बच्चे, उनका क्या कसूर है? फीस यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ले रहे, पैसे वो ले रहे, डिग्री उन्होंने प्रोवाइड करनी है, इंटर्नशिप के लिए बच्चे रुल रहे हैं बेचारे, उनका क्या कसूर है? वो हमसे रब्ता करते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, जहाँ जहाँ तक हम उनको एडजस्ट करवा सकते हैं, जहाँ पे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं JPMC में या लियाकत नेशनल में या प्राइवेट लैब्स में, हम उनको वहाँ पे इंटरटेन करते हैं, लेकिन ये कोई वे नहीं है। यूनिवर्सिटी से हमारी डिमांड ये है, मैं VC साहब से भी मिलूंगा और मैं बाकायदा इसका रिटर्न लेटर लिखूंगा कि या तो इसकी मैंडेटरी इंटर्नशिप ख़त्म की जाए, कहीं पे भी नहीं है मैंडेटरी इंटर्नशिप, वैसे की जाती है मैंडेटरी, उसका डिग्री से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सिर्फ उन जगहों पे मैंडेटरी है जिन यूनिवर्सिटीज़ के अपने टीचिंग हॉस्पिटल हैं, वो अपने इदारों में करवाते हैं। बहरिया करवा रही है BS की, हम आप हमारे साथ बैठे हुए, उनके अपने टीचिंग हॉस्पिटल हैं, आप करवाएं वहाँ पर इंटर्नशिप, कोई इशू नहीं है। शेख ज़ैद में हम करवा रहे हैं, हम फर्स्ट ईयर से अपने बच्चों को क्लिनिकल साइड पे ले आते हैं। अगर 9 से 12 या 8 से 12 उनके लेक्चर्स हैं तो 12 से 2 बजे तक वो अपना हैंड्स ऑन करते हैं, मुख्तलिफ सेक्शन में आके काम सीखते हैं, वो वही इंटर्नशिप होती है। उसके अलावा क्या इंटर्नशिप होती है, ये हमारी समझ से बाहर है। तो मैडम मेरी रिक्वेस्ट ये है, या इसकी मैंडेटरी इंटर्नशिप ख़त्म की जाए, या अगर इंटर्नशिप आपने रखनी है तो फैसिलिटेट करें अपने स्टूडेंट्स को, या उनकी फ़ीस रिटर्न करने वो पार्ट जो वो लोग ट्रैवल करके कराची आते हैं या वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में धक्के खा रहे हैं बेचारे। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। लिगारी साहब आएंगे इंशाल्लाह, मैं दोबारा भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, पर्सनली भी नहीं तो मैं VC साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम प्रायोरिटी बेस पर सॉल्व किया जाए। DG साहब मौजूद है, सर से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमने यस्टरडे हमारा एक MOU हुआ सर मलेर यूनिवर्सिटी के साथ, जी जी यस्टरडे सर हमारी मलेर यूनिवर्सिटी में हमने MOU किया, डॉक्टर सदफ डीन है अलाइड हेल्थ साइंसेज की, वहाँ पे MOU करने का मकसद ये होता है कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने कैसे फैसिलिटेट करना है। हर स्टूडेंट की एक्सेस नहीं है कि वो यहाँ पे आ सके, हर स्टूडेंट की एक्सेस नहीं है कि वो इस्लामाबाद या बाकी सिटीज़ के वर्कशॉप अटेंड कर सके या CME बेस्ड सेमिनार्स अटेंड कर सके। हम ये चाहते हैं ML टैप के प्लेटफॉर्म पे
कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसे शेरवानी साहब बैठे हुए फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि हम उनके जो स्टूडेंट्स हैं 200, 300, 400 की स्ट्रेंथ में पॉसिबल नहीं है वो सारे के सारे यहाँ पे आ सकें। हम उनको उनकी यूनिवर्सिटी में फैसिलिटेट करें, हम ये ट्रेनिंग्स, हम ये प्रोग्राम्स, हम ये फ्यूचर उनके जो काउंसलिंग है या कैरियर काउंसलिंग है या हमारे जितनी भी बायोसेफ्टी की ट्रेनिंग्स हैं हम उनके इदारों में करें, उस लेवल पे करें जहाँ पे उनके स्टूडेंट्स को ग्रास रूट लेवल पे फ़ायदा हो और वो उनको उनकी दहलीज पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो हमने सर ये लास्ट डे यस्टरडे हमने ये डॉक्टर सदफ के साथ की है MOU। मेरी रिक्वेस्ट है सर कि बहरिया में हमने 1-2 छोटी मीटिंग्स की हैं स्टूडेंट्स के साथ। बहरिया हमें मौका दे 2024 में अगले साल कि हम एक बड़ी एक्टिविटी आपके इदारे में करें। आपके अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, MLT है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, इवन अब आप लोग MPhil MS स्टार्ट करवाने लगे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सर। जब तक अलाइड हेल्थ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या बनने जा रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है, उनकी स्कोप क्या है, वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, उनको इस डिग्री का फ़ायदा नहीं है सर। उनको तब फ़ायदा जब उनको अपनी डिग्री की अहमियत का पता होगा, उनके पास अवेयरनेस होगी और उनको पता होगा कि चीज़ें हमने कैसे लेके चलनी और फ्यूचर में हमारा क्या रोल है, हम डायग्नोस्टिक में, टीचिंग में, क्लिनिकल में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है, हम सर्विसेज देंगे। हमारी सर्विसेज भी अगेन फ्री ऑफ कास्ट है सर। हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक ऐसा MOU बहरिया के साथ भी करें जैसे हमने मलेर यूनिवर्सिटी के साथ किया है, एक ऐसा MOU फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ भी करें, डो यूनिवर्सिटी के साथ भी करें, और ये सर्विसेज हम आपकी दहलीज पे, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके स्टूडेंट्स को वहाँ पर प्रोवाइड करें। इसी तरह MLTAP की और बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, हम आपको साथ लेकर चलते रहेंगे इंशाल्लाह। टाइम बहुत कम है, मेरे पास 10 मिनट थे, तो मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम जितने मेहमानान गिरामी हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आज के इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। ये आज का प्रोग्राम भी CME एक्रीडेटेड है, 3 क्रेडिट आवर्स की एक्रीडेशन है हमारे पास डो यूनिवर्सिटी की, तो इंशाल्लाह आज की सर्टिफिकेशन का भी आपको फ़ायदा होगा। हमने बड़ी मेहनत से इस पे जो आपके की नोट स्पीकर्स हैं उनको सेलेक्ट किया है ताकि आपको मज़ीद नया कुछ सीखने का मौका मिले। स्पेशल जो हमारी इमर्जिंग डिजीज़ हैं, हमारे जो बायोसेफ्टी के कंसेप्ट्स हैं, या जो गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस के हवाले से हमारी जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, हम उनको आप लोगों तक पहुंचाएं, आप लोगों को सिखाएं। और कॉम्पिटेंट हमारे पास की नोट स्पीकर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लास्ट मैनी ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास, और वो अपनी अपनी जगहों पर बेहतरीन अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आज के इस इवेंट में मैं एक और अनाउंसमेंट करूँगा कि जो पोस्टर कंपटीशन के हमारे स्टूडेंट हैं उनको MLTAP प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसकी। तो आज के इस इवेंट में हमारे पास ज़मान इंटरप्राइजेज़ के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। मुबारक ज़ैब साहब ओनर है, ज़मान इंटरप्राइजेज़ के डायरेक्टर हैं। तो उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि जो फर्स्ट प्राइज़ होगा वो ज़मान इंटरप्राइजेज़ की तरफ से होगा फॉर द पोस्टर कंपटीशन विनर। इन्होंने हमें ये फैसिलिटेट किया है, 2nd 3rd इंशाल्लाह MLTAP प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो फर्स्ट प्राइज़ आपके ज़िम्मे है। मज़ीद हम आपके साथ हैं, MLTAP आपके साथ है, पेप्सा आपके साथ है हमारे पास, बल्कि एक और डॉक्टर सईद साहब ASM के भी कंट्री एम्बेसडर हैं। तो ये भी हमारे पास एक माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से एक बहुत बड़ा फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है आप लोगों के पास। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए, आप हमारे पास आए, हमारे साथ चलें, हम आपको आगे लेके चलेंगे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सॉरी मैं खुद ही सारी चीज़ें क्लेम किए जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बीइंग द होस्ट ऑफ दिस इवेंट मैं थोड़ी सी प्रिविलेजेस ले रहा हूँ डॉक्टर साहब की परमिशन से। इंशाल्लाह वो भी ये चीज़ें अनाउंस करेंगे। तो आप सब इंशाल्लाह हमारे साथ रहें, हमारी एक्टिविटीज़ में साथ रहें, हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन करें, वेबसाइट्स को विज़िट किया करें, नई जो एक्टिविटीज़ है उनमें अपनी पार्टिसिपेशन करें। रिसर्च के हवाले से हम आपको सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन के हवाले से हम आपको सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग्स के हवाले से हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपके जो यूनिवर्सिटी लेवल के इशूज़ है वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करवाएंगे, और जितने भी अदर लैब टेक्नोलॉजी के जितने भी जेन्युइन इशू हैं वो हमारे इशूज़ हैं, उसको हल करवाना, उनकी आवाज़ बुलंद करना, नेशनल लेवल पे लेके जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये MLTAP की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह MLTAP आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।